Hello friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic algebraic expressions. One of few topics are left to explain, so I'm just going to cover those topics. So the topics are expressions, terms and factors. Expression and terms already I have explained you, but the factor subtopic was left. So here you can see one expression is given 3abc plus 2ab minus 7. So we can classify this as a terms. In this expression we have three terms. The first one is 3abc, second term is plus 2ab and the third term is minus 7. Now in these terms also we have factors for 3abc, 3a, b and c. These are called factors of the term 3abc. Similarly 2ab are called factors of the term 2ab and minus 7 is already a factor. So we will go through with few examples. Write all the factors of minus x square y. So what will be the factors? So answer, factors will be, numerical factor will be minus 1 because no number is there, it means there is a number 1. जब कोई भी number नहीं होता है it means वहाँ पर होता है number 1. x दो बार है, what does it mean? x भी फैक्टर होगा और दूसरा x भी फैक्टर होगा और एक और वेरिएबल दिया हुआ है y. So minus x square y has four factors minus 1, x, x and y. Take another example a, 4a, b, c. So what will be the factors? Numerical factor is 4, a is the factor, b is the factor and c is the factor. Now draw a T diagram for this. So tree diagram, it means this expression has two terms. Which two terms? Minus 7a square and another term is plus 15ab. Term always goes with the signs, always write down the sign. Now this we have minus 7a and one more factor, this is a. Now here we have 15, then a and the third factor is b. So this is called tree diagram. This is just the revision, already we have done this. A monomial with one term, binomial is with two terms, trinomial it means three term. But you must be knowing about the multinomial और polynomial. So multinomial and polynomial दोनों ही एक हैं. तो जब कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म होते हैं तब हम इसे पॉलिनोमियल कहते हैं. तब दो या दो से ज़्यादा टर्म मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये भी एक पॉलिनोमियल होना चाहिए. यस, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स होते हैं. ट्राइनोमियल भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं. सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू और मोर टर्म्स. यदि दो या दो से ज़्यादा टर्म है तो हम उसे सिंपली पॉलिनोमियल कहते हैं. और पॉलिनोमियल विथ two terms is known as binomial. Polynomial with three terms is known as trinomial. किसी किसी बुक में आपको मल्टीनोमियल्स भी मिलेगा, मीनिंग इज सेम. अब पॉलिनोमियल होता क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a plus bx plus cx square plus dx cube and so on, where a b c d, this a b c and d, these are the constants, and x, this x is a variable. a b c d are the constant and this x is a variable. पॉली मीन्स बहुत सारे, पॉली का यूज होता है एक्चुअली बहुत सारे, तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल. द पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व आर नॉन नेगेटिव. आप देख सकते हैं ये जितने भी पावर्स है ये सारी पावर्स पॉजिटिव हैं. एक्स की पावर्स, वेरिएबल की पावर्स पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती हैं. You can take example 6 minus 7x is a polynomial. यहाँ x की जो पावर है कोई भी पावर नहीं है, कोई भी, it means there is a 1.
तो ये भी एक पॉजिटिव पावर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। 2/x plus 5 is not a polynomial because x डिनोमिनेटर में है। What does it mean? 2/x, इसका क्या मतलब होता है? 2x raised to the power -1, तो यहाँ पर x की पावर नेगेटिव हो गई, इसलिए 2/x plus 5 is not a polynomial. इट मीन्स यदि वेरिएबल आपके डिनोमिनेटर में है या उसकी पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। आपको पॉलिनोमियल है कि नहीं आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज 4/9 x रेज टू द पावर 4। आपको सारे वेरिएबल की पावर्स देखनी है। ये पावर पॉजिटिव है, ये भी पावर पॉजिटिव है, सो पावर्स ऑफ द वेरिएबल इज पॉजिटिव। All the powers of the variable is positive, so that it is a polynomial. Come to the second example. पावर्स चेक करिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सेम थिंग, सिंस ऑल द पावर्स आर पॉजिटिव, therefore it is a polynomial. आपको पहचानते आना चाहिए कि दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में दूसरा न्यूमरेटर में, बट इसका क्या मतलब होगा? x रेज टू द पावर -1 मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, और सिंस पावर नेगेटिव है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। It is not a polynomial. Come for the fourth sum. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में, इट मीन्स इसका क्या मतलब होगा? पावर नेगेटिव होगी, सो द पावर इज नेगेटिव, सो दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. So this is the note. An expression containing the terms of the form x raised to the power -1 or 4/x, 4/x square, 4/x cube. What does it mean? जब भी वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में होता है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। Polynomial in one variable. It is an expression with one variable. यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक वेरिएबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक केवल एक वेरिएबल x है, उसकी पावर्स अलग अलग है बट हमारा वेरिएबल एक ही है, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, तो डेफिनेटली उसमें टू वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं a एंड b दो वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x एंड y दो वेरिएबल्स है, तो जब दो वेरिएबल्स होते हैं तब हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब डिग्री, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आप वेरिएबल देख सकते हैं, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है? a है, कोई पावर नहीं है, इट मीन्स क्या है? यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी वो भी क्या होगी? 1 होगी। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर वही है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर 3 है, कोई भी पावर नहीं है, इट मीन्स 1 है, सो 3 और 1 क्या ग्रेटर है उसमें? 3, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 3। जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, ग्रेटर पावर होगी, उसे हम 3 कहते हैं। पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वेरिएबल है एक टर्म में, तो हम क्या करते हैं? एक और एक दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 2, तो यहाँ पर जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो हो जाएगी 2। यहाँ पर आप देखिए ये है 3, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, एक ही टर्म में हमने दोनों को ऐड कर लिया तो हमें मिल गया 2, यहाँ पर x की पावर हो गई 1, तो हमें 3 पावर्स मिली, 3, 2 और 1। ग्रेटेस्ट कौन सी है? 3, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी यहाँ पर वो हो जाएगी 3। तो इस तरह से द डिग्री ऑफ एनी टर्म इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल इन दैट टर्म। सेम चीज यहाँ पे जो एक टर्म है इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, इनमें जितनी भी पावर्स होगी हम सब उनको ऐड कर लेंगे, एंड द ग्रेटेस्ट सम इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और उसके बाद भी जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर मिलेगा, सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगी जिस भी टर्म की, उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स फॉर डिग्री।
ये सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 4 है। सो 2 और 4 क्या बड़ा है? 4। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। सिंगल वेरिएबल है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। विच इज द ग्रेटेस्ट वन? 8। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। व्हाट डज इट मीन? 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5x रेस टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या हो गई? 0। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, सो 2 + 2 विल गिव यू 4। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इट मीन्स 1। सो 1 + 3 विल गिव यू 4 एंड यहाँ पर कोई भी नहीं है, इट मीन्स इसकी 0 होगी। तो ग्रेटेस्ट क्या हो गई? 4। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 4। 2 + 4 will give you 6 for this term. 1 + 3 will give you 4. So which is the greatest one? 6. So degree of the polynomial is 6. Thank you for watching today's video. Don't forget to like, subscribe and share the video, and also to watch my next video.